Ball up in the air. It might fall safe. No. Chopper. He's got a chance. And again, this is just sensational to watch. زبردست Really easy behind. This has been terrific. Down the far leg. Does it clear him? It's a gift. بیٹا بیٹھ دیکھو کون ہے صبح صبح دروازے پر. ان لوگوں کو چین ہی نہیں آتا. سنو بیٹا, اگر انکل چودھری ہوں انہیں بتانا کہ رات وہ ہاسپٹل میں تھے, ابھی سوئے ہوئے ہیں. اگر وہ پیسوں کا تقاضا کرے انہیں کہنا ان کے دل میں تکلیف ہے, بعد میں دے دیں گے پیسے. Cameo is over. Australia can relax again. What a strike it is from Mohammad Riaz. زبردست. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. ہاں پاپا ہیں گھر پہ؟ خیریت؟ ہاں کوئی خاص کام نہیں تھا, ان کو کہتے کہ ذرا گیٹ پہ آ کے بات کر لیں, 2 منٹ کی بات تھی. وہ انکل آج آسٹریلیا اور پاکستان کا ورلڈ کرکٹ میچ ہے. ہاں 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 ہاں. ان کا بس چلے تو وہ ٹی وی بھی واش روم میں لے جائیں, وہ باہر نہیں آئیں گے, آپ اندر آ جائیں. اچھا آج تو فائنل ہے نا. ہاں چلو ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. السلام علیکم. السلام. ہیں جی فہیم صاحب بیٹھے ہیں, تشریف رکھیں. فہیم صاحب آج صبح صبح خیریت تو ہے نا؟ نہیں الیاس بھائی, میں مسجد جا رہا تھا. ایکچولی میری موٹر بائک خراب ہو گئی ہے. میں نے سوچا کہ اگر آپ کو کہیں نہیں جانا تو میں آپ کی موٹر بائک لے جاؤں. فہیم بھائی اتوار کے دن صبح 9 بجے مسجد, بھائی مولانا صاحب نے آپ کو کوئی سنڈے کی نئی نماز تو نہیں شروع کروا دی؟ نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نئی نماز کیا ہونی ہے. ہر اتوار کو مسجد میں دینیات کی کلاس ہوتی ہے جس میں دینی تعلیمات کے مختلف موضوعات سکھائے جاتے ہیں. پوری زندگی تو الیاس بھائی ہم نا اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں. صرف اتوار کے 3 گھنٹے ہم کچھ دینی علوم حاصل کر لیتے ہیں. میرا تو کہنا ہے کہ آپ بھی آج میرے ساتھ چلیے. نہ فہیم بھائی نہ, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کرکٹ کا کتنا شوقین ہوں اور کتنا بہترین میچ چل رہا ہے. بھائی اگر اس وقت تو ملک الموت بھی مجھے آواز دینا تو اس کو بھی انکار کر دوں. میری مانو تو آپ بھی یہاں بیٹھ کے میچ انجوائے کرو. آپ کو تو پتہ ہے بھائی میرا آدھا دین تو کرکٹ میچ ہے. نہ نہ, اس طرح کی بات نہیں کرتے الیاس بھائی, یہ شرک ہے. اگر ہم دین سیکھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ فہیم بھائی الحمدللہ جمعے کی نماز میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی, اور رمضان شریف کے روزے بھی 15-20 رکھ ہی لیتا ہوں. الحمدللہ تراویح بھی پڑھتا ہوں, اور جمعۃ المبارک کے رات کو اپنے مرحومین کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام بھی کرتا ہوں, اور عید میلاد النبی پہ لنگر بھی تقسیم کرتا ہوں, اور بڑی عید پہ ایک موٹی تازی گائے کی قربانی کا بھی اہتمام کرتا ہوں. بھائی اتنے اچھے کام کرنے سے میرے اللہ میاں مجھ سے راضی ہو ہی جائیں گے. جو اب تیرے ساتھ جا کر دین بھی سیکھوں جس سے اور کنفیوژن اور ٹینشن بڑھے, نہ بھائی نہ, مجھے معاف رکھو بھائی. الیاس بھائی, 5 گانا نماز, رمضان کے سارے روزے, زکوٰۃ, حرام سے بچنا, صرف یہی نہیں ہمیں دین کے باقی احکامات پہ بھی تو عمل کرنا ہے. دیکھیں بھائی, میں 5 گانا نماز باقاعدگی سے مسجد میں جا کر تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں نماز کا منکر بھی نہیں ہوں. الحمدللہ گھر میں بڑی خوبصورت جائے نمازیں رکھی ہوئی میں نے, اور قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے, پڑھتا بھی ہوں. اور اتنی گرمی میں رمضان کے پورے 30 روزے رکھنا ذرا مشکل ہے. ہاں جتنے ہو سکتے رکھ لیتا ہوں باقاعدگی سے. الحمدللہ ربیع الاول کا پورا مہینہ گھر میں گاڑی میں نعتیں سنتا ہوں, محفلوں میں بھی جاتا ہوں اور نعتیں بھی پڑھتا ہوں. الحمدللہ مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق بھی ہے. اب اتنے اچھے کام کرنے سے جنت تو مجھے مل ہی جائے گی نا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ ذرا لائن میں لگ کے جانا پڑے. آپ جیسا سپر دیندار پہلے پہنچ جائے گا, ہمیں ذرا پہنچنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی. بھائی آخر ہم نے جانا تو ایک ہی جگہ پہ ہے نا. Oh, this is a good strike, I think, is it? Yes! زبردست, وہ دیکھو 2 چھکے لگ گئے یار, زبردست. کتنا پیارا میچ چل رہا ہے بھائی. میچ دیکھو. فہیم بھائی اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک مشورہ دوں, اپنے آپ کو اتنا دین کے قریب مت لے جاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. پاگل جی نہیں الیاس بھائی, ایسی بات نہیں کرتے. دین پاگل نہیں کرتا, جو دین پر عمل نہیں کرتے وہ پاگل ہوتے ہیں. دین تو فطرت کا تقاضا ہے. زبردست, ایک اور چھکا لگا. فہیم بھائی میچ دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا ہے. بھائی آپ ایسا کریں, آپ کو جلدی, آپ یہ چابی لیں اور میرا میچ مت خراب کریں, آپ تشریف لے جائیں. شکریہ. زبردست. الیاس بھائی آپ سے واک پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. Messi moment in the game. Once اللہ again. حافظ.
And gets in. That's what Zabardast. Stark can do. वाह मौलाना, बहुत खूबसूरत ख़ता फरमाया, मौजू बहुत खूबसूरत था आज आपका। लेकिन मैं एक अजीब बात सोच रहा हूँ कि बहुत अजीब व गरीब लोग हैं यहाँ, अजीब व गरीब सोच रखते हैं। क्या हुआ फ़हीम भाई? वो मेरे एक हमसाए हैं जी, इलियास भाई। कौन? वो इलियास हसन की बात कर रहे हैं आप? आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो तो जुमा के अलावा कभी मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए। अरे फ़हीम भाई, उसकी खुद साख्ता दीनदारी के बारे में सुना हुआ मैंने। हाँ, उनकी आइडियालॉजी है कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी जियो और उसमें दीन का थोड़ा सा तड़का लगा लो, और जब दीन ही ज़िंदगी बन जाए तो उसमें थोड़ी सी चुटकी भर नमक मिला दो, सिर्फ जायके के लिए। ये है उनकी फ़िलासफ़ी। मौलाना फरमाइए आप ये कि क्या ऐसे लोग जन्नत के हकदार हो सकते हैं? फ़हीम भाई, ऐसे लोगों का दीन के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। दीन इनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो उनको मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से मिली हुई है। वाह, यानी कि बायोलॉजिकल दीन। फ़हीम भाई, इस तरह का जो दीन है वो झूठी उम्मीद दिलाता है। जो काम उनको आसान लगते हैं वो उन कामों को अंजाम देते हैं, और जो काम उनके लिए मुश्किल होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। और अगर मरने के बाद जन्नत जहन्नम का मामला हुआ, वो समझता है कि जो मैंने दुनिया में आसान काम किए हैं उनकी वजह से जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे दुनिया में रिश्वत देकर काम चला लेते हैं, तो इनका ख्याल है हम चूँकि प्यारे नबी की उम्मत हैं, हम नातें पढ़ते हैं, हम मिलाद कराते हैं, तो वहाँ भी हमारा काम बन जाएगा। अरे फ़हीम भाई, इस पर हमारे एक उस्ताद मोहतरम मिसाल लेते थे, मैं आपको वो समझाता हूँ। जी जी फरमाइए। वाह वाह वाह, क्या मिसाल दी आपके उस्ताद साहब ने। अब मैं इस मिसाल को अमली तौर पर साबित करूंगा और इलियास हसन को बताऊंगा कि दीन क्या होता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अब अगली नमाज पे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। बनेगी? नहीं बनेगी। बनेगी? नहीं बनेगी। बनेगी? तो फ़हीम भाई है, नहीं बनेगी। ये क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सब कैसे हैं? खैरियत तो है ना फ़हीम भाई? हाँ खैरियत है। फ़हीम भाई, ये आप छोटे से प्याले को लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बनेगी या नहीं बनेगी? भाई आखिर आप क्या बनाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? इलियास भाई, इस प्याले में थोड़ा सा दही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मैं थोड़ा सा दही इस नहर में मिला दूँ तो क्या ये सारी नहर जो है वो लस्सी बन जाएगी? फ़हीम भाई, आपने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था ना, ज्यादा दीन मत सीखें वरना पागल हो जाएंगे। वही हुआ भाई। इतने छोटे से प्याले से इतनी बड़ी नहर, भला कैसे लस्सी बन सकती है? इस प्याले को जब आप नहर में फेंकेंगे तो इसका रंग तक नहीं बदलेगा और इसको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी दही कहाँ गई। ये होता है सुपर दीनदार जो छोटी सी बात भी नहीं समझ सकता। लगता है आपको पागल खाना लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको आपकी ज़ुबान से साबित कर दूं कि इससे एक प्याला दही से ये सारी नहर लस्सी बन सकती है तो ठीक है, साबित करें। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक साल में दिन? 365 दिन। और पूरे साल में कितने घंटे होते हैं? भाई आपको तो पता है कि मैं सिर्फ 10वीं क्लास पास हूँ और वो भी किसी आप जैसे मेहरबान की मेहरबानी से। और मुझे सिर्फ इतना पता है किससे कितने पैसे लेने हैं। तकरीबन 8,800। भाई इस जवाब से ये नहर लस्सी कैसे बन जाएगी? ये बताएं कि आप कितने साल जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा? खुदा का खौफ करें, अब आप मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। मेरे मरने के बाद आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सब कुछ मेरे बच्चों के नाम पे है। बताइए 70 साल की ज़िंदगी ठीक है ना आपके लिए? ठीक है, आगे बोले। तो 70 साल में 6,20,000 घंटे हो गए। आप ये बताइए कि आप एक साल में कितने घंटे दीन को देते हैं? क्या मतलब फ़हीम भाई? जुमे का सिर्फ 1 घंटा, यानी
52 घंटे साल। आप महीने में 15 दिन तकरीबन रोज़े रखते हैं, साथ तरावी भी मिला लें तो ये बनते हैं 300 घंटे। ठीक है। अगर आपके रबीउल अव्वल के मिलाद भी हम शामिल कर लें तो ये सिर्फ 100 घंटे बनते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 500 घंटे आप अपने दीन को देते हैं। तो भाई इससे क्या साबित होता है? ये कि आपने 70 साल में तकरीबन 500 घंटे अपने दीन को दिए और टोटल 6,20,000 घंटों में से ये 1% भी नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में एक जरा सा टाइम दीन को देते हैं, जरा सा टाइम। और किस दीन को? वो दीन जो अल्लाह की तरफ से हमें अता हुआ, उस मालिक के दीन को जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके दायरा इख्तियार में हमारी ज़िंदगी का हर इख्तियार है, हमारी ज़िंदगी का हर शोबा है, जो हमें पानी देता है इसलिए कि हमारी प्यास बुझ जाए, जिसने ऑक्सीजन बनाई हमारे लिए जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे आपके बदन में ताकत देता है जिससे हम उठते हैं, हम बैठते हैं, उस अल्लाह के दीन, उस अल्लाह को जिसने हमारे लिए हज़ारों नेमतें, लाखों नेमतें बनाई, उसके दीन को सिर्फ 1% भी नहीं देते आप लोग। और फिर आप ये भी सोचते हैं कि इस दुनिया में आप पर लुत्फ़े खुदाबंदी होगा और वो भी अब्दी, और आखिरत भी बन जाएगी। 700 घंटे, सिर्फ 700 घंटे अपनी 70 साल ज़िंदगी में से खर्च करके आप ये समझते हैं कि आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो फिर इस प्याले का थोड़ा सा दही इस सारी नहर को लस्सी क्यों नहीं बना सकता? सोचें कि अगर आपकी जन्नत इस थोड़े से दीन से बन सकती है, जिसमें सिर्फ इजहार अकीदत है, ईमान सिर्फ अक्ल में है, दिल में नहीं, जहां आप अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात जैसे सियासत, कारोबार, बच्चों के अमूर, तजारत, ताल्लुकात दीन के बगैर चलाते हो, और फिर कुछ नमाज, थोड़े से रोज़े और सदकात करके आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ काफ़ी है। अलियास भाई, ज़िंदगी जितनी वसी है, दीन भी उतना ही वसी होना चाहिए। यानी इंसान ये सोचे कि हम ये जो काम कर रहे हैं, दीन किस तरह चाहता है कि हम ये काम करें, तब ज़िंदगी दीनी बन सकती है। जब मैं कहता हूँ कि इस थोड़े से दही से ये नहर लस्सी बन सकती है, तो क्यों हंसते हैं? क्यों मुझे पागल समझते हैं? मैं पागल नहीं, हम दोनों पागल हैं। ये हमारी दोनों की सोच में इनहराफ है। हमने दीन को गलत समझा है। तालीम मगरबी सिस्टम में, शादी ब्याह हिंदू रसूमात से, बैंकिंग आपकी सूदी निज़ाम से, और सियासत में मगरबी जमहूरियत का तड़का। जब आपको इन लगवियात से फुर्सत मिल जाती है तो फिर नमाज, रोज़े, और फिर आप कहते हैं कि ये ज़िंदगी इलाही है, ये दीनी ज़िंदगी है आपकी। अलियास भाई, आपकी जन्नत आपकी थोड़ी सी महदूद सोच से बन सकती है, तो इस दही से ये नहर लस्सी क्यों नहीं बन सकती? बताइए, बनेगी या नहीं? नहीं बनेगी। फाइन भाई, अगले संडे जब मस्जिद जाए ना, तो मुझसे चाबी लेने नहीं आना आपने। मैं खुद आपको आपके घर से पिक करूंगा और हम दोनों भाई मस्जिद जाकर मौलवी साहब से दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह।